Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System and to the third lecture for the course of Seismic Design of Structures. This course is generally for MSc Civil Engineering with specialization in Structural Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 3 and week number 3. In our today's lecture, first of all, we will discuss about the earthquake parameters. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में earthquake parameters कुछ हमने डिस्कस किए थे और वही आज हम उससे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे. And then we will discuss about the measurement of earthquakes and the important factors कि इनके अलावा measurement या earthquake parameters के अलावा कौन सी important चीज़ें हैं जो हम consider करते हैं while analyzing any type of seismic resistant structures. These are your reference textbooks. Summary of the previous lectures. इस कोर्स में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन अबाउट अर्थक्वेक पढ़ा, देन वी डिस्कस द सीज्मोलॉजी एंड इन सीज्मोलॉजी वी कवर द इंटीरियर्स ऑफ अर्थ. बेसिकली अर्थ इज मेड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स. इनर मोस्ट लेयर इज इनर कोर, उसके बाद जो है वो आउटर कोर है, उसके बाद मेंटल आ जाता है और मेंटल के ऊपर जो है वो आपके पास क्रस्ट आ जाता है. मेंटल बेसिकली इज अ मोल्टन मटेरियल और वहाँ से जो है वो एक दो लेयर्स के दरमियान एक गैप जनरेट होता है या गैप्स ऑलरेडी हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से. उनके अंदर से मोल्टन मटेरियल बेसिकली आउटर रीजन की तरफ या क्रस्ट की तरफ जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करता है, जो कि एक सबडक्शन प्रोसेस भी डेवलप होता है और उन फ्लो की वजह से एक डिफरेंट गैप्स जनरेट होती हैं और उन गैप्स की वजह से जो है वो एक क्लस्टर ऑफ प्लेट्स के दरमियान एक मूवमेंट जनरेट होती है और दैट प्लेट्स बेसिकली आर नोन एज अ टेक्टोनिक प्लेट्स. And also we discussed about the causes of earthquakes and we also discussed about the tectonic theory and elastic rebound theories भी हमने पढ़ी. Then in our second lecture we discussed about the seismic waves, its different types, and we also discussed about the ground motions and earthquake parameters. So now coming back to the topic in our today's lecture, जहाँ पे हमने earthquake parameters को छोड़ा था लास्ट लेक्चर में, वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे. एंड उसके बाद जो है वो हम मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक कि हाउ वी मेजर बेसिकली द अर्थक्वेक इंटेंसिटीज एंड मैग्नीट्यूड्स को हम किस तरह से मेजर करते हैं. एंड उसके बाद जो है वो सम अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स या फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल एनालाइजिंग एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, हम उनको भी डिस्कस करेंगे. सो मेजरली इन अर्थक्वेक पैरामीटर्स there are two most important parameters that are magnitude of earthquake and second is the intensity of earthquake. मैग्नीट्यूड को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था और थोड़ा अब दोबारा उसको ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम इंटेंसिटी के ऊपर चलते हैं कि earthquake magnitude basically is a measure of the energy released during the earthquake and hence defines the size of the seismic event. कि magnitude basically is a scale या magnitude basically is a identification mark जिससे हम एक size of the earthquake को represent कराते हैं. Whereas the intensity is a subjective assessment of the effect of earthquake at given location and is not directly related to the magnitude. Magnitude basically is the measurement size कि how much area was affected या how much in how much area that earthquake basically was occurred. एंड इंटेंसिटी के अंदर उस एरिया के अंदर जहाँ पे अर्थक्वेक आया उसने क्या जो है वो हमारे स्ट्रक्चर्स को डैमेज किया, ह्यूमन लाइफ्स को डैमेज किया. तो उस चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं दैट कैटेगरी बेसिकली कम्स एज अ इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक. द एक्सेप्टेड मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड इज द रेक्टर स्केल. The magnitude is related to the maximum trace deformation of the surface wave propagation of seismographs recorded by standard Wood-Anderson seismograph at a distance of 100 kilometers from the epicenter. कि मैग्नीट्यूड को बेसिकली हम रेक्टर स्केल से जो है वो रिप्रेजेंट कराते हैं और रेक्टर स्केल बेसिकली जो है वो हम जो है वो एक सीज्मोग्राफ के ज़रिए हमें एक वैल्यूज़ अपटेन होती हैं. किस तरह से अपटेन होती हैं सीज्मोग्राफ के ऊपर हम मज़ीद आते हैं. ये एक स्टैंडर्ड वुड एंडरसन सीज्मोग्राफ वाज द बेसिक आइडिया फ्रॉम दैट. उसके बाद जो है वो जो कि एक डिस्टेंस फ्रॉम द एपी सेंटर 100 किलोमीटर्स के ऊपर जो है वो सेट किया जाता है. उससे जो है वो हमें वेरियस रिकॉर्ड या डेटा जो है वो हमें ऑब्जर्व करते हैं और उनकी बेस पे हम एक मैग्नीट्यूड को डिसाइड करते हैं कि विच this earthquake या what is the magnitude of this earthquake basically.
और ये डिफरेंट ट्रेस डिफॉर्मेशंस कि वो सीस्मोग्राफ एक ग्राउंड मोशंस की वजह से डिफरेंट ट्रेसेस को मार्क करता है एक पेज के ऊपर, और उन ट्रेसेस की वजह से हम मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को डिसाइड करते हैं। So now again in magnitude we have here is the comparison कि एक मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है बेसिकली हाउ मच एनर्जी वो रिलीज करता है। लेट्स सपोज अगर हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 and 10 अर्थक्वेक की जो डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हैं अगर हम इनकी बात करें तो हर मैग्नीट्यूड कितनी एनर्जी को जो है वो रिलीज करता है, उसके बाद नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स कितने अपीयर होते हैं दुनिया के अंदर। लेट्स सपोज लेस देन 2 और 2 जो मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक हैं तकरीबन जो है वो 10 लाख के करीब पूरी दुनिया के अंदर एक साल में अपीयर होते हैं, जो कि एनर्जी रिलीज करते हैं 56 इक्विवेलेंट किलोग्राम्स ऑफ एक्सप्लोजिव। कि अगर आजकल का जो एक्सप्लोजिव है दुनिया के अंदर अवेलेबल, अगर उसका 56 किलोग्राम आप एक्सप्लोजिव का एक जगह पे ब्लास्ट करें तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतनी जो है वो 1-2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिलीज करता है, और ये लाखों की तादाद में हर साल आते हैं जो कि नेग्लिजिबल है बेसिकली। उसके बाद मैग्नीट्यूड 3 के 1 लाख के करीब पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपीयर होते हैं अर्थक्वेक्स। ओक्लाहोमा सिटी बॉम्बिंग, लार्ज लाइट वोल्टिंग, इनकी एनर्जी, इनके रियलिस्टिक एग्जांपल्स जो है ये हमारे पास हैं। मॉडरेट लाइटनिंग बोल्ट है, उसके बाद ओक्लाहोमा सिटी बॉम्बिंग है, लार्ज लाइट बोल्ट है, जो कि एनर्जी बेसिकली रिलीज कर रहे होते हैं 1800 इक्विवेलेंट किलोग्राम्स ऑफ एक्सप्लोजिव। 1800 किलोग्राम एक्सप्लोजिव का जो है वो आप ब्लास्ट करते हो एक जगह के ऊपर। Then we have magnitude 4 10,000, उसके बाद magnitude 5 1000, magnitude 6 100, like its energy basically release energy is equivalent to Hiroshima atomic bomb जो कि blast हुआ था, उसके equivalent जो है वो ये एक energy release करता है 6 magnitude impact का। और ये अराउंड 5.6 कैटेगरी के जो है वो 1884 में भी अर्थक्वेक आ चुके हैं। उसके बाद जो है वो 6 पॉइंट समथिंग के अंदर 1995 में 1994 के अंदर जापान और नॉर्थ रिज कैलिफोर्निया के अंदर भी आ चुके हैं। तो उसके बाद 8 मैग्नीट्यूड के चांसेस जो है वो हमारे पास 0.3 हैं, 9 के जो है वो चांसेस 0.1 है, लेस देन 0.1 है जो अर्थक्वेक एक साल के अंदर अपीयर होते हैं। लेकिन एनर्जी की अगर हम बात करें तो इन अर्थक्वेक्स की जो एनर्जी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इवन वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था यूएसएसआर ने किया था, उसके इक्विवेलेंट जो है वो इवन 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो उसके इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज करता है। इवन इन सम केसेस के अंदर हम यहाँ पे इक्विवेलेंट टू द होल एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन भी एक किस्म का जो है वो अर्थक्वेक जनरेट करता है, उसको हम मजीद आगे देखते हैं। तो दिस वाज द ओवरऑल मैग्नीट्यूड्स, हाउ मच मैग्नीट्यूड, व्हाट एक्चुअली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट्स, कि जिस इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है उस इंटेंसिटी के हवाले से हमारे पास एक कंपैरेटिव एनर्जी है कि कितनी एनर्जी अंदाजे के अंदर हम बता सकते हैं कि कितनी एनर्जी वो रिलीज करता है एक अर्थक्वेक एक मैग्नीट्यूड का। नाउ दिस इज द मैग्नीट्यूड स्केल बेसिकली रफली। आगे हम उसको मजीद डिटेल के अंदर जब हम इसके ऊपर काम करेंगे, अपने डिजाइंस करेंगे, तो हो सकता है कि हम इसको मजीद डिटेल में लेके चलें। लेकिन जो वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं वो डिपेंडेंट होती है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर या फ्रॉम द सोर्स बेसिकली, कि कितने सोर्स से आप डिस्टेंस से, एपी सेंटर से कितने डिस्टेंस के ऊपर आप रीडिंग्स ले रहे हो, एंड द एम्पलीट्यूड, कि एम्पलीट्यूड बेसिकली आप कितना कंसीडर कर रहे हो। इन दोनों के दरमियान जो है वो एक आप रिलेशनशिप डेवलप करते हो, रिलेशनशिप से जो है वो आप एक मैग्नीट्यूड की या द साइज ऑफ अर्थक्वेक की वैल्यू डिसाइड करता है। Furthermore, as such, it can be sensitive to the focal depth of the earthquake, and magnitudes computed from the body wave portions of seismographs are often used to refine estimates of the magnitude. कि जो आपकी फोकल डेप्थ से रेलेवेंट चीज़ें हैं, सेंसिटिव एरियाज है, वहाँ से आप जो है वो सीस्मोग्राफ के जरिए जो है वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउएवर द रिजल्ट इज जनरली कन्वर्टेड बैक टू द इक्विवेलेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस, कि हम जो है ग्राउंड मोशंस की जो वैल्यूज होती हैं बेसिकली उनसे हम डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स या एक जो ट्रेसेस ऑब्जर्व करते हैं और उन ट्रेसेस को मजीद हम रेक्टर स्केल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम दुनिया को या किसी भी एक प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए शो करने के लिए हम बता सकें कि इस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जो कि बेसिकली आपका उस मैग्नीट्यूड के पीछे उसकी पूरी कहानी जो है वो एक नंबर के पीछे पूरी उसकी कहानी कंप्लीटली ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, जैसा हमने अभी पीछे डिस्कस किया। The accepted relationship basically between the energy, कि एनर्जी पहले हम ऑब्जर्व करते हैं और उस एनर्जी से हम कन्वर्ट करते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर। द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलीज एनर्जी एंड द रिक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू log E इज इक्वल्स टू 11.4 प्लस 1.5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक।
where energy basically is in ergs basically is equals to centimeter gram into second। तो ये आपके पास एक लॉग रिलेशनशिप है जो कि रिप्रेजेंट कराता है एनर्जी वर्सेस जो है वो एक रेक्टर स्केल मैग्नीट्यूड का। Now this is again here we have energy of vector magnitude 6.1 6.3 जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं दुनिया के अंदर जो है वो डिफरेंट अर्थक्वेक्स इस मैग्नीट्यूड के, तो हमने जो है वो कंपैरेटिवली एनालाइज किया हुआ है। इवन इन दिस केस वी कैन सी हियर 8.3 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है बेसिकली वो एनर्जी रिलीज करता है 1.7 into 10⁻⁶ टोटल एनर्जी फ्रॉम द सन दैट हिट्स द अर्थ एवरी सेकेंड, कि हर सेकंड के ऊपर टोटल जो अर्थ के ऊपर जो सन की एनर्जी अप्लाई हो रही है इतनी एक सेकंड के अंदर इतनी एनर्जी जो है वो ये अर्थक्वेक रिलीज करता है। तो ये आपके पास एक डिफरेंट एनर्जी इरप्शन है ड्यू टू द डिफरेंट मैग्नीट्यूड स्केल्स ऑफ द अर्थक्वेक, कि किस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है और उसने कितनी एनर्जी को रिलीज किया है। नाउ अर्थक्वेक्स ऑफ रेक्टर मैग्नीट्यूड लेस देन 5 मैग्नीट्यूड, जिसका 5 से कम है, रेयरली कॉज सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल डैमेज particularly when deep seated। इवन जब एक डीप अर्थक्वेक जब इरप्ट होता है आउटर सरफेस के ऊपर उसकी वेव्स आती हैं, तो अगर उसकी ओवरऑल मैग्नीट्यूड जो है वो 5 या 5 से कम है तो उसका इतना ज़्यादा सीरियस इफेक्ट नहीं होता हमारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर। हाउएवर अगर अर्थक्वेक इंटेंसिटी आपकी 5 से मैग्नीट्यूड उसका 5 से लेके 6 के दरमियान है, इवन इट कैन कॉज अ सीवियर डैमेज क्लोज टू द एपिसेंटर के जो डिस्टेंट नज़दीक एरियाज हैं वहाँ पे ये सीरियसली डैमेज कर सकता है। इसकी रिसेंट एग्जांपल जो है वो 1986 का मैग्नीट्यूड है जिसका अर्थक्वेक है जिसकी मैग्नीट्यूड 5.4 थी। सैन सैल्वाडोर अर्थक्वेक व्हिच वाज लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ 7 किलोमीटर्स बिलो द सिटी एंड कैन डैमेज एस्टिमेटेड ऑफ एट $1.5 billion। The surface area subjected to strong ground shaking was approximately 100 kilometers and corresponded closely to the city limits। कि इसने सराउंडिंग एक 100 किलोमीटर के सरफेस एरिया को जो है वो सिग्निफिकेंटली डैमेज किया, जिसके अंदर जो है वो हमारे स्ट्रक्चर्स जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स थे वो सीवियरली डैमेज हुए और उनकी वजह से $1.5 बिलियन का जो है वो नुकसान हुआ, जो 5.4 इवन अर्थक्वेक की जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड थी। Now in the range of magnitude 6 to 7 the area of potential damage is considerably larger, कि मैग्नीट्यूड आपका जो 5 से 6 के दरमियान था तो आपका एक करस्पॉन्डिंग जो ग्राउंड शेकिंग का एरिया था वो इन 100 किलोमीटर्स मूव कर रहा था 100 किलोमीटर्स के अंदर। हाउएवर अगर मैग्नीट्यूड आपकी 6 to 7 हो जाती है द एरिया ऑफ पोटेंशियल डैमेज वाज लार्जर, तो हमने देखा कि वो ज़्यादा था। जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ गई उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटिंग या कवर एरिया था वो भी इंक्रीज हो गया, जो कि ऑब्जर्व किया गया 1971 के अंदर सैन फर्नांडो अर्थक्वेक जिसकी इंटेंसिटी 6.4 मैग्नीट्यूड थी कॉज द सीरियस स्ट्रक्चरल डैमेज ओवर एन एरिया अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर। कि जैसे हम लोअर इंटेंसिटी से हायर की तरफ जा रहे हैं वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर था विद 100 किलोमीटर्स, और उसके बाद जो है वो इम्पैक्ट आपका इवन फ्रॉम 6 से लेके 6.4 तक गया, तो जस्ट आपका जो है वो एक वाइड रेंज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया इवन 2000 किलोमीटर्स। Now earthquakes in the range of 7 to 8 structural damage may occur over an area of about 10,000 kilometers। कि ये एक्सपेक्ट किया गया कि 10,000 किलोमीटर के अंदर जो अर्थक्वेक जा सकता है या स्प्रेड हो सकता है वो 7 to 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इस रेंज के अंदर स्प्रेड हो सकता है, जो कि रियली ऑब्जर्व किया गया चाइना के अंदर इन 1976 के अंदर, जो कि M7+ अर्थक्वेक था मैग्नीट्यूड का which destroyed the city and left more than 250,000 people died। And Chilean earthquake जिसकी मैग्नीट्यूड 7.8 थी, also the similar conditions were observed in Chilean earthquake जो कि 1985 के अंदर आया था। Now earthquakes of magnitude 8 or greater जो 8 से ज़्यादा हैं often termed great earthquakes इनको कहा जाता है, capable of causing widespread structural damage over greater area more than 100,000 kilometers। कि एक अर्थक्वेक जो कि बहुत कम आए हैं, रेयर चांसेस होते हैं दुनिया के अंदर कि 8 या 8 से इंटेंसिटी जिसकी मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो, इस तरह के अर्थक्वेक बहुत कम आए हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई अर्थक्वेक आता है तो ये 100,000 किलोमीटर्स के एरिया को वो कवर करेगा। द अलास्कन अर्थक्वेक जो कि 1964 के अंदर एक मैग्नीट्यूड 8+ का, एंड चिलियन अर्थक्वेक 1960 के अंदर एक M8 का, each of which cause widespread damage to engineered structures are in this category।
उनको इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है या उनको कंसीडर किया जाता है डिज़ाइन पर्पसेस के लिए। The logarithmic scale of implies that for each unit increase in the Richter scale, कि हर यूनिट जैसे इंक्रीज होता जा रहा है 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, द एनर्जी रिलीज इंक्रीजेस बाय 101.5 टाइम्स। एनर्जी 101.5 दफा जो है वो बढ़ जाती है रिक्टर मैग्नीट्यूड के एक यूनिट के इंक्रीज होने से। चाहे अगर एक जो आपका इम्पैक्ट है मैग्नीट्यूड आपका 6 है या 6.1 है या 7 है, तो उसके दरमियान जो है वो मैग्नीट्यूड का इतना फर्क नहीं है, लेकिन एनर्जी इरप्शन का जो है वो बहुत ज़्यादा फर्क है। इसका एग्जांपल हम यहाँ से ले सकते हैं कि मैग्नीट्यूड M8 अर्थक्वेक रिलीजेस 1000 टाइम्स द एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक M6 अर्थक्वेक, कि 1000 से टाइम ज़्यादा एनर्जी जो है वो M8 का अर्थक्वेक रिलीज कर सकता है M6 के कंपेरिजन